going on, guys? Welcome to my channel Cut Cook Taste. I'm here with something super amazing and absolutely delicious. This recipe is an age-old recipe and a family recipe which we call Hing Mirch Achar. This pickle is absolutely delicious and I don't know how to make it, so I'm gonna be learning it with you guys while my mother makes it for us. Let's go check out the ingredients she's gonna be using it for this recipe. Get this amazing beautiful mango tree. I've been using it for a lot of things. I've been making ambi filled karelas, aam ki longi. It gives me so much pleasure to pluck these mangoes directly from the tree and use it in my kitchen. It is such an amazing. We have multiple trees like this. It is such a pleasure, such an amazing experience. A sneak peek to the chiku tree also that we have here. We have been eating a lot of chikus from this tree, so like very few are left. But yeah, back to my mangoes. I'm so excited to share this mango pickle recipe with you. So guys, as we can see, I'm here plucking the mangoes. Not me, but I'm getting them plucked with the help of this jugaad that we have made at home itself. With a long stick and a old bag, we have made a triangle sort of thing, and we try to put a mango inside the triangle and pull it, so that see how we capture all the mangoes here in it, and then put it aside and go fetch more mangoes from the tree. So the whole experience of plucking the mangoes from the tree is such a beautiful experience. I'm totally loving it. I have been out from my home since long, and this is the first time I'm watching, how this is done. So I think a benefit of lockdown. So yeah, so these are the mangoes after plucking them, and we have washed them in water, and now they're lying on a sheet where they're drying, and simultaneously we are peeling the mangoes for the achar. So you have to peel the green skin of the mangoes nicely from all the mangoes. You don't have to worry about the light green part, only the dark green skin should be peeled off nicely. So this is how it is done. It takes a whole village to make a pickle. So, a lot of people were involved in the process of peeling the mangoes, cutting them into pieces. So yeah, this is how the mangoes are looking after peeling them. Now comes a chance where we are cutting the mangoes. तो इसको आपको small slices में काटना है, like we cut a normal general mango, ripened mango, वैसे ही इसको small slices में काटना है, and you have to discard the seed and use all the pulp as much as you can. Don't worry about little tiny pieces that you have to clean the seed. तो seed clean होना चाहिए, main मकसद वो है. And छोटे parts हों, बड़े parts हों, वो सब pickle में mix हो जाते हैं, तो it doesn't make a lot of difference. So we have to peel the whole. See how it is done, and now we'll discard the seed. So this is how my mangoes are looking after cutting them into slices. Next step after peeling and cutting the mangoes is weighing the mangoes. This is a very important step because pickles are made with proper measurements. So we're going to weigh them properly, and we are using normal kitchen weigh scale to measure our mangoes. So guys, these are my mangoes. These are around 10 kgs of mango pulp. We are going to add around 1 kg of salt to this mango. So the general measurement is to every 1 kg, हर 1 किलो आम के पल्प के लिए हम 100 grams of salt डालते हैं. तो ये 10 kg mango pulp है, तो हमने इसमें 1 kg salt डाला है, और हम इस salt को अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे अपने मैंगो पल्प के साथ. अच्छे से, बहुत अच्छे से अंदर तक आपको मिक्स करना है. आप हाथ से कर सकते हैं, आप
अपने बॉक्स को बंद करके अच्छे से शेक कर सकते हैं। द होल पॉइंट इज पूरे मैंगोज में नमक अच्छे से लग जाना चाहिए। सो गाइज, दिस इज हाउ माई मैंगोज आर लुकिंग आफ्टर कीपिंग देम ओवरनाइट विद सॉल्ट इन देम। तो सॉल्ट लगाने के बाद एक रात रखने के बाद ये ऐसे दिख रहे हैं। ये ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं, अपनी क्वांटिटी से रिड्यूस हो गए हैं, बिकॉज सारा वाटर बाहर आ चुका है। अब हम इसका वाटर स्क्वीज करके एक शीट पे इसको फैला रहे हैं। पतली पतली लेयर में हम इसको फैलाएंगे और सन की रेज देंगे। इसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, इससे ये जितना भी एक्सेस वाटर होता है आम के अंदर वो निकल जाता है और इससे अचार की लाइफ भी बढ़ती है। तो बिकॉज ये अचार हम ईयर में एक ही बार बनाते हैं जब मैंगो का सीज़न होता है, लेकिन यूज़ हम इसको पूरे साल करते हैं, इसलिए ये प्रोसेस है कि हम वाटर स्क्वीज़ करने के बाद इसको सुखाते हैं कि एक्सेस वाटर सारा निकल जाए और सूख जाए। तो ये आपकी नमक लगने के बाद ये ऐसी दिख रही है। अभी हम इसको पूरे दिन के लिए फॉर अराउंड 24 आवर्स हमें इसे सुखाना होता है। अब जो हमारा आम स्क्वीज़ करके जो वाटर बचा था उसको हम सीव कर रहे हैं। सारा वाटर हम सीव कर लेंगे, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आम के हैं वो सब निकल जाए। ये हमारा सीव करने के बाद पानी ऐसा दिख रहा है। इसमें अब हम एसाफेटिडा यानी कि हींग मिलाएंगे। तो हींग को आपको लेना है और उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। सो अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ हींग हम मिला रहे हैं 10 kgs ऑफ मैंगो में। सो पर केजी हम 10 ग्राम्स ऑफ हींग मिलाते हैं क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कि हींग के थोड़े थोड़े लम्स बनेंगे, तो उसको आपको अच्छे से मिक्स करना है कि वो लम्स नहीं बने और अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इस पानी को रख देंगे जब तक हमारे आम सूख रहे हैं सन के नीचे। तो हम 24 आवर्स के लिए उन आमों को अच्छी धूप में सुखाएंगे और उसके बाद हम उसका अचार डालेंगे। तो देखिए हमारा 24 आवर्स के बाद आम सूखने के बाद ऐसा दिख रहा है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। आपको पहचान कैसे होगी? जब आप इसको अपने हाथ में लेंगे तो आपके हाथ में बिल्कुल पानी नहीं आएगा, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं आएगा। और देखिए इसका कलर भी थोड़ा येलोइश पन पे हो गया क्योंकि सारा पानी निकल चुका है और ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। बिल्कुल पानी नहीं आपके हाथ में ये छोड़ेगा और ये ऐसे दिखने लगेगा। अब ये जो हमारा हींग का वाटर था, अब हम इसमें रेड मिर्च डालेंगे, रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। आपको ध्यान रखना है रेड चिली पाउडर आपको बहुत बढ़िया वाला लेना है जो ब्राइट रेड कलर में हो। कलर वाली मिर्च नहीं लेनी, लेकिन ब्राइट रेड कलर में मिर्ची होनी चाहिए। हम इन 10 kg ऑफ मैंगो पल्प में अराउंड 500 ग्राम्स ऑफ रेड चिली पाउडर डालेंगे। तो हर kg के लिए 50 ग्राम्स ऑफ रेड चिली पाउडर चाहिए होता है। तो 10 kgs हैं तो हम इसमें 500 ग्राम्स ऑफ चिली पाउडर डाल रहे हैं। आप सारा चिली पाउडर इसमें डाल दीजिए और ब्राइट रेड चिली का ध्यान रखिए, तभी इस अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हमारे को ये सारा चिली पाउडर मिक्स करना है अच्छे से। अब हम इसमें सारा मैंगो पल्प डाल देंगे। जो हमने मैंगो सुखा रखा था वो पल्प हम इसमें वापस डाल रहे हैं पानी में। तो मेरा सवाल अपनी मम्मा से ये था कि आपने पहले आम को सुखाया, उसका पानी निकाला और फिर उसके बाद उसी पानी में उसको दोबारा डाल दिया। तो मेरी मम्मा का जवाब ये था कि उसका रीज़न ये होता है कि हमें फुल ईयर लॉन्ग इसे यूज़ करना होता है। तो जब हम पानी निकाल देते हैं तो ये अंदर तक सूख जाता है और फिर ख़राब नहीं होता। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे और डायरेक्ट डाल देंगे तो ये बहुत कम लाइफ के लिए चलेगा और कुछ ही टाइम में ये ख़राब हो जाएगा। इससे ये आप 1 साल 2 साल तक इसे आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो आप सारा चिली वाटर और एसाफेटिडा का वाटर इसके संग अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और ये आप अचार एक्चुअली में जितना ज़्यादा पुराना होता जाता है उतना ज़्यादा टेस्टी लगता जाता है। तो ये आप आराम से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।
अब आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए जिसमें आप इसको स्टोर करना चाहते हैं। तो ईयर लॉन्ग के लिए आपको ये स्टोर करना है, आप बड़ा कंटेनर ले लीजिए, ग्लास का ले लीजिए, प्लास्टिक का ले लीजिए, जो आप प्रेफर करते हैं, और उस कंटेनर में इसको आप स्टोर करिए और ये आप ईयर लॉन्ग इंजॉय कर सकते हैं, relish कर सकते हैं with your family. It is one of my favorite pickles that I really relish and enjoy.